Hello, students. A very fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself by staying home and staying safe. Welcome back to our English class. In the previous class, students, we have completed our chapter number 2, that is common, proper, and abstract noun from our grammar textbook. And that was your last chapter for PT1 syllabus. So, with that, we have completed our PT1 syllabus from grammar textbook and also from our Communicating English textbook. Now, we are going to start with PT2 syllabus and the chapter number 3, that is Meena's letter, which is in your English textbook Communicate in English. We would be starting that chapter today, and this is your PT2 syllabus chapter. It's not going to come for your PT1 exam. So now let's start the chapter. So students, I request you all to open your textbook Communicate in English, page number 29. So let's see what the chapter is all about. Let's start with the topic of the chapter. What is the name of the chapter? Meena's letter. What does it mean? That there is a letter which belongs to Meena, right? Letter जो मीना का है, right? So it's about Meena's letter. It might be written by Meena herself, right? And it belongs to her. And she might have written some stuff to somebody. किसी को तो लिखा होगा उसने लेटर, है ना? अभी आपको पता होगा what is a letter. Letter is a way of communication. And in olden times it was considered to be the only way of communication. पहले के टाइम के अंदर कम्युनिकेशन अगर होता है, राइट, आप एक सिटी में रहते हो और दूसरा दूसरे सिटी में रहता है, तो अगर आप उसको कुछ बताना चाहते हो, देन एट दैट टाइम देयर वर नो फोन्स और मोबाइल फोन्स एंड पेजर नहीं था, फैक्स सिस्टम नहीं थी. सो एट दैट टाइम द ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन वॉज थ्रू लेटर्स. ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप लेटर लिखते हो किसी को, तो आपको उसका एड्रेस लिखना पड़ता है, एंड अलॉन्ग विथ इट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द सिटी. एंड व्हेन यू पोस्ट इट एट योर पोस्ट ऑफिस, आपके घर के पास जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर आप पोस्ट करते हो, और उसके ऊपर जिस सिटी का एड्रेस लिखा होता है वो सिटी में उसको भेजा जाता है. एंड फ्रॉम देयर अगेन द पोस्टमैन वुड फॉरवर्ड इट टू द एड्रेस विच हैज़ बीन रिटर्न ऑन द लेटर, राइट. और फिर आपने जिसको लेटर लिखा है उसको आपका लेटर मिल जाएगा. सो दैट इज़ हाउ द लेटर इज़ बीइंग रिटर्न एंड पोस्टेड, एंड इट रीचेस टू द वन whom you have returned the letter. Now this was considered to be the only way of communication पहले के टाइम के अंदर. अभी तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादातर, बिकॉज वी हैव फोन्स जिसके थ्रू हम लोग तुरंत बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग मैसेजेस कर सकते हैं, मेल्स कर सकते हैं. सो नाउ टेक्नोलॉजी इज़ डेवलप्ड अ लॉट, बट येस दिस इज़ ऑल्सो अ फन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. येस, अगर कोई इमरजेंसी है उस टाइम पे कॉल्स जो है या फिर मैसेजेस जो है, वो जो अभी सिस्टम है वो वाली ज़्यादा बेटर है. लेकिन हाँ, पहले के टाइम में यही वाला एक कम्युनिकेशन का वे था. सो वी आर गोइंग टू रीड द लेटर विच मीना हैज़ रिटर्न. ओके, एंड बिफोर डूइंग दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू टू do this exercise which is given over here. Now you need to talk to 4 of your classmates and find out the following information and write it down in the column below. You can write down the information about your friend. ठीक है, आपके कोई भी 3 या 4 फ्रेंड्स के बारे में आपको लिखना है. फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज राइट द नेम ओवर हियर. यहाँ पे नाम लिखना है आपको. Then their favorite TV program, that means which program do they like to watch more. Then favorite game or sports, उनको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है. And favorite food. So you need to ask your friend and then write it down over here. And then we have a short paragraph kind of thing over here, and you need to describe any one of them by filling the blanks. मतलब आप 2-3 जिसके बारे में लिखोगे उसमें से किसी एक के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करना है. जैसे कि माई क्लासमेट्स नेम इज़ डैश, आई लाइक हर और हिम. इफ़ यू हैव अ फ्रेंड हु इज़ अ गर्ल, राइट, तो आप हर लिखना, और अगर आपका फ्रेंड लड़का है तो आप हिम यूज़ करना. ठीक है, अकॉर्डिंगली आपको मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जो भी है आपका फ्रेंड का जो भी जेंडर है उस हिसाब से आपको प्रोनाउंस यूज़ करने हैं. ठीक है, नाउ लेट्स
start our chapter, which is actually on page number 30. So let's see that. Okay, so here we have a girl called Meena. She calls her grandfather Nanu and he is her mother's father. Obviously, Nanu किसको कहा जाता है? आपके मम्मी के फादर को, राइट? उसको आप नानू कहते हो, और अगर आपके पापा के फादर है तो उसको क्या कहोगे? दादाजी कहते हैं, है ना? दोनों होते ग्रैंड पेरेंट्स ही है, लेकिन येस, इन आवर वे वी कॉल इट इन अ डिफरेंट नेम. तो यहाँ पे मीना जो है वो अपने ग्रैंडफादर को नानू बुलाती है. ही इज़ हर मदर्स फादर एंड मीना रोट अ लेटर टू नानू अबाउट हर न्यू फ्रेंड. सो द लेटर विच इज़ बीइंग रिटर्न बाय मीना, दैट इज़ रिलेटेड टू हर न्यू फ्रेंड. किसके बारे में लिखा है उसने लेटर में? अपनी एक न्यू फ्रेंड के बारे में लिखा है. सो लेट्स जस्ट रीड द लेटर व्हाट इट इज़ रिटर्न ओवर हियर. 15th July 2018. Dear Nanu, a new girl joined our class today. Miss asked her to sit in front and told the class to show her around and be friends with her. But nobody spoke to her. She was wearing a pretty bracelet and had a new bag. She wore her hair in 2 long plaits tied up with ribbons. Manu and Asim stared at her plaits. Then they whispered to each other and laughed. She must have felt uncomfortable because she looked away. Gauri said she looked proud and stuck up. I thought she looked lonely and sad. She did not know anyone. So I went up to her and said hello. The new girl smiled and suddenly looked happy. I asked her to sit next to me and we started talking. I was glad that I said hello because she is a really nice person. The funny thing is that she too is called Meena, short for Amina. She has come from Mumbai and her mother is going to work here. We have become good friends and are interested in the same things. We plan to do things together. We have also decided to call ourselves the Meena Duo. Isn't that cool? How are you and Nani? When will you visit us? I really miss you both. With lots of love, your loving granddaughter Meena. So students, this is the letter which is returned by Meena to her Nanu. Okay. So I hope you might have got the idea what the letter is all about. Meena has described her friend and how she became friend with Amina. Right? The name of the girl is Amina. ठीक है, जिसका शॉर्ट है मीना, मतलब उसको भी सब क्या बुलाते हैं? मीना ही बुलाते हैं. So she started writing the letter from the very beginning, from the day when Amina joined the class. Right? So what did she wrote? A new girl joined our class today. Miss asked her to sit in front and told the class to show her around and be friends with her. Miss मतलब उनकी जो टीचर है उसने बाकी सब बच्चों को, मतलब उनके जो क्लासमेट्स हैं, मीना के जो क्लासमेट्स हैं, अलॉन्ग विथ मीना, उनको क्या कहा कि प्लीज़ शो हर अराउंड, उसको दिखाओ, बिकॉज शी इज़ अ न्यू कमर ओवर हियर एंड शी नीड्स समबडी टू टॉक टू. राइट? अभी कोई भी नया आता है आपकी क्लास के अंदर तो आपको क्या करना चाहिए? उसको कंफर्टेबल फील करवाना चाहिए. राइट? एंड हाउ कैन यू डू दैट? बाय टॉकिंग टू दैट पर्सन नाइसली. राइट? सो द टीचर टोल्ड हर टू सिट इन फ्रंट. उसके जो टीचर थे उन्होंने ये जो लड़की है उसको क्या कहा कि तुम आगे बैठो, सिट इन फ्रंट, और पूरे क्लास को कहा कि प्लीज़ शो हर अराउंड. दैट मीन्स गिव हर अ टूर ऑफ द स्कूल. ठीक है, क्योंकि वो नहीं है ना तो उसको कुछ नहीं मालूम होगा, इसीलिए. और सबको बोला कि प्लीज़ बी फ्रेंड विथ हर बिकॉज शी इज़ न्यू ओवर हियर. बट नोबडी स्पोक टू हर. किसी ने भी उसके साथ बात नहीं की. Nobody spoke to her. She was wearing a pretty bracelet and had a new bag. So this is the description which is given by Meena. Meena said that she was wearing a pretty bracelet in her hand. Bracelet means a chain kind of thing which is being worn on the hand. आप
रिस्ट जो होता है लड़कियों का, वो रिस्ट के ऊपर पहना जाता है ब्रेसलेट, ठीक है. सो शी वॉज वेयरिंग अ प्रेटी ब्रेसलेट एंड हैड अ न्यू बैग, और उसका जो बैग था वो भी नया वाला था. शी वोर हर हेयर इन 2 लॉन्ग प्लेट्स टाइड अप विथ रिबन्स. सो उसके बाल जो थे, her hair was long and that's why she had tied it up in the plaits. Plaits means not only a pony, it's a kind of hairstyle जिसके अंदर braid बनाया जाता है, ठीक है. It's called braid. Okay, so that's how she made her hair. She made it into 2 long plaits, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था. You can see over here students, यहाँ पे दिखाया गया है, right? See this. So she had just combed her hair into 2 long plaits and it was tied up with ribbons. और उसको किससे बांधा गया था? नीचे से रिबन से बांधा गया था. Manu and Asim stared at her plaits. Stared means to keep on looking something continuously. किसी चीज़ को constantly किसी चीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहना, दैट इज़ कॉल्ड स्टेयरिंग. सो मनु और असीम, मतलब जो उसके फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है मीना के, राइट, वो दोनों क्या कर रहे थे? दे वर जस्ट स्टेयरिंग एट हर प्लेट्स, दे वर लुकिंग एट हर हेयर. देन दे विस्पर्ड टू ईच अदर. विस्पर्ड मीन्स टू टॉक सॉफ्टली इन सच अ वे कि दूसरों को सुनाई नहीं दे, राइट. टू टॉक इन सच अ वे दैट अदर्स कैन नॉट लिसन, सो दैट इज़ कॉल्ड विस्परिंग. So then they whispered to each other and laughed, and that means they might have said something or they might have spoken ill about that girl, right? जो नई गर्ल है उसके बारे में कुछ मजाक उड़ाया होगा. And then they started laughing. She must have felt uncomfortable because she looked away. और उसको देख के मीना को क्या फील हुआ? When they were laughing at her, she came to know कि yes, these boys are looking at me and then they are talking about me and they are laughing. सो उसको काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हुआ होगा. दैट वॉज समथिंग विच वॉज नोटिस्ड बाई मीना बिकॉज शी लुक्ड अवे. दैट मीन्स शी स्टॉप्ड लुकिंग एट दैट साइड एंड शी स्टार्टेड लुकिंग ऑन द अदर वे. द मीनिंग इज गिवन ओवर हियर स्टूडेंट्स. यू कैन सी दैट लुक्ड द अदर वे. सॉरी. ओके, दैट मीन्स शी वॉज नॉट लुकिंग ओवर देयर. नाउ गौरी सेड शी लुक्ड प्राउड एंड स्टक अप. अभी उसकी जो एक फ्रेंड है, एक और मीना की, उसका नाम है गौरी. उसको क्या लगता है? व्हाट डज शी थिंक अबाउट दैट गर्ल? दैट शी लुक्स प्राउड एंड स्टक अप. शी लुक्स प्राउड एंड स्टक अप. दैट मीन्स कि शी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ वेरी हाईली. सी द मीनिंग गिवन ओवर हियर. शी लुक्ड एज इफ शी थॉट वेरी हाईली ऑफ हर सेल्फ. मतलब बहुत ज़्यादा प्राउडी लगती है. ऐसा लगता है कि उसको किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करनी है बिकॉज नो बडी इज़ लाइक हर. ठीक है, उसको ऐसी फीलिंग आई गौरी को. नाउ द थिंग ओवर हियर इज यू कैन नॉट जज समबडी जस्ट बाय लुकिंग एट हर, राइट. किसी का एटीट्यूड या किसी का बिहेवियर आप उसको सिर्फ देख के जज नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट डू दैट. Until and unless you talk to them, you cannot come to know कि वो सामने वाला जो person है वो कैसा है. Whether that person is good or bad, you cannot make it out until you talk to them, right? So गौरी ने उससे बात तो नहीं की, लेकिन उसको देख के उसे क्या लग रहा था कि she is quite proud and she feels that उसके जैसा कोई नहीं है यहाँ क्लास में. लेकिन मीना को क्या लग रहा था? I thought she looked lonely and sad. Now you need to remember one thing students, कि यहाँ पे ये जो लेटर लिखा जा रहा है वो कौन लिख रहा है? मीना लिख रही है, राइट. तो वो हर जगह आई यूज़ करेगी जब भी वो बात कर रही है कि मुझे क्या फील हुआ, राइट. सो शी इज़ गोइंग टू यूज़ आई बिकॉज शी इज़ राइटिंग वट एवर शी फेल्ट, राइट. सो ये आपको ध्यान रखना है. आई थॉट शी लुक्ड लोनली एंड सैड. अभी गौरी को फील हुआ कि शी इज़ क्वाइट प्राउडी. But what did Meena thought? That she looked lonely and sad. Why she might be lonely? Lonely means alone. Lonely means she felt alone. She was new over there and she had no friends. So obviously she might be feeling lonely. And she was feeling sad because her classmates were making fun of her. Right? Without any reason. बाकी जो बच्चे थे वो वैसे ही friendship तो कर नहीं रहे थे.
लेकिन साथ में उसकी मजाक भी उड़ा रहे थे, एंड दैट्स वाई शी वॉज क्वाइट सैड. शी डिड नॉट नो एनी वन. Obviously, she was new over there, so how could she know anyone? So I went up to her and said hello. So मीना ने क्या कहा कि nobody was going over there, nobody was talking to her. So I decided, मतलब मीना ने decide किया कि I will go to her, I will initiate, I will start talking to her. और उसने वहाँ जाके उसको hello बोला. Hello, she said to the girl. The new girl smiled and suddenly looked happy. अब ये जो नई लड़की थी, right, she was very happy now. She smiled because there was somebody in the class who was ready to talk to her, right? So she smiled at Meena and she looked happy. I asked her to sit next to me and we started talking. So Meena ने उसको क्या suggest किया कि you can sit along with me, and then we started talking. और फिर हम लोगों ने बातें करना start किया. I was glad that I said hello because she is really a nice person. So when they started talking, जब दोनों के बीच में बातें होने लगी, right, after that मीना को क्या फील हुआ कि ये जो लड़की है वो काफ़ी अच्छी है, she is a good person, she is really nice person, and she was glad. Glad means she was happy that she decided to go and talk to her first, right. उसको ये बहुत अच्छा लगा, मीना को बहुत अच्छा लगा कि वो आगे जाके उसने उसको हेलो कहा, एंड शी मेड हर फील कंफर्टेबल बिकॉज शी वॉज क्वाइट लोनली एंड सैड. शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड. सो व्हेन मीना वेंट टू हर एंड सेड हेलो, शी ऑल्सो फेल्ट गुड अबाउट इट एंड शी फेल्ट वेलकम्ड ओवर देयर इन द क्लास. The funny thing is that she too is called Meena, short for Amina. And what is the most funniest thing? उसके हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे फ़नी है कि इसका नाम भी मीना है, ये जो लड़की लेटर लिख रही है उसका नाम भी मीना है, एंड ये जो नई गर्ल है, द न्यू गर्ल, उसका वैसे नाम तो अमीना है लेकिन सब उसको मीना बुलाते हैं. ठीक है. सो शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीना, और इसका तो नाम ऑलरेडी मीना ही है. So according to her, this is something which is considered to be funny. She has come from Mumbai and her mother is going to work here. So Meena कहाँ से आई हुई है? She has come from Mumbai. That means before she was living in Mumbai and now she is here, क्योंकि उसकी जो मम्मी है उसका शायद ट्रांसफ़र हुआ हो या फिर वो वहाँ पे जॉब कर रही है अभी वो लोग जहाँ पे है वहाँ पर, right? So her mother is going to work here. Now we don't know वेयर मीना इज़ लिविंग, राइट. इसीलिए हमको सिर्फ इतना मालूम है कि अमीना जो है वो कहाँ से आई हुई है? मुंबई से आई हुई है. ठीक है. वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स एंड आर इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग्स. सो नाउ व्हाट इज़ मीना सेइंग कि हम लोग अभी अच्छे फ्रेंड्स बन गए. वी हैव बिकम गुड फ्रेंड्स एंड हमारी जो हॉबीज़ है, वी आर इंटरेस्टेड इन सेम थिंग्स. दैट मीन्स उनकी जो हॉबीज़ है, जो उनको करना अच्छा लगता है अपने फ्री टाइम में या ऐसे भी, वो सारी चीज़ें काफ़ी सिमिलर है और इसीलिए उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो गई. एंड वी प्लान टू डू थिंग्स टुगेदर. सो व्हाट डू दे डू? वैसे भी उनको सेम चीज़ में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, दोनों हर चीज़ को साथ में करने का प्लान करते हैं. दे प्लान कि वो जो भी चीज़ करे, वट एवर एक्टिविटी दे कैरी आउट, दे फील दैट दे शुड कैरी आउट टुगेदर बिकॉज दे बोथ आर इंटरेस्टेड इन द सेम थिंग्स. We have also decided to call ourselves the Meena Duo. Meena Duo. Duo means pair. Okay, यहाँ पे duo का मतलब क्या है? pair. मतलब दो मीना है ना वहाँ पे, एक ये जो लेटर लिख रही है वो, और दूसरी नई लड़की जिसका नाम अमीना है, बट शी इज़ बीइंग कॉल्ड मीना. सो उन्होंने क्या डिसाइड किया हुआ है? दे बोथ डिसाइडेड दैट दे वुड बी कॉलिंग देमसेल्व्स द मीना Duo. ओके. एंड इजंट दैट कूल? शी इज़ आस्किंग her नानू कि it's not, isn't it cool that we are going to call ourselves Meena Duo, right? उसको लगता है कि it is very cool और इसीलिए वो अपने नानू को भी लेटर में पूछ रही है. बिकॉज नाउ सी दिस इज़ अ क्वेश्चन जिसका रिप्लाई उसको उसके नानू जब लिखेंगे वापस लेटर तब उसमें मिलेगा, राइट. तो ये सारी जो चीज़ें हैं या जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम रेज करते हैं, नॉर्मली जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमको तुरंत रिप्लाई मिल जाता है. बट व्हेन यू राइट अ लेटर एट दैट टाइम यू डोंट गेट द रिप्लाई
at that moment itself, right? Immediately आपको reply नहीं मिलेगा. Yes, but when that same person whom you have written letter, if that person is replying back, आपको जब वो वापस लेटर लिखता है रिप्लाई देने के लिए, at that time you might be getting all those answers which you might have asked them. Okay. Now what else Meena asked to her Nanu? How are you and Nani? Right? What did she ask? कि कैसे हो आप लोग? And will you visit, when will you visit us? And she is very eager to meet them and she is also missing both of them. इसीलिए वो क्या पूछती है उसको, वो अपने नानू को क्या पूछ रही है कि वो अब उनको मिलने कब आने वाले हैं. I really miss you both. And she also writes down that she misses both of them because they are not staying in one city, right? They are not staying in same state, and that's the reason कि उसको नाना नानी से हर रोज़ मिलने को नहीं मिलता होगा, and that's the reason that she is missing both of them. With lots of love, your loving granddaughter Meena. And that is called the ending part, your loving granddaughter. When you will learn writing a letter, ठीक है, जब आप लोग लेटर लिखना सीखोगे फॉर्मल इनफॉर्मल, तब आपको ये सारी चीज़ें पता चलेगी कि यहाँ पे एंड में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में डियर नानू क्यों लिखा हुआ है, राइट, डेट क्यों डाली हुई है. ये सारी चीज़ें जब हम लेटर्स सीखेंगे, जब मैं आपको लेटर सिखाऊंगी कि एक लेटर कैसा लिखा जाता है, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, जो भी लेटर्स लिखेंगे हम जब सीखेंगे तब आपको उसका फॉर्मेट समझ में आएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लेटर एंड करते हैं, एट दैट टाइम वी राइट अवर रिगार्ड्स. जैसे कि यहाँ पे लिखा है विथ लॉट्स ऑफ लव, सो दैट इज़ रिगार्ड्स विथ फॉर द पर्सन हुम वी आर राइटिंग अ लेटर. और उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं, जिसने लेटर लिखा है वो अपना नाम लिखेंगे. जैसे कि यहाँ पे लेटर किसने लिखा हुआ है, हु हैज़ रिटर्न द लेटर ओवर हियर, मीना ने लिखा है, इसीलिए उसने अपना नाम लिखा है, योर लविंग ग्रैंड डॉटर मीना. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो लेटर है जो मीना ने अपने नानू को लिखा हुआ है वो लेटर आपको अच्छे से समझ में आ गया. नाउ द नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ गिवन ओवर हियर इज़ अबाउट द नानू हु इज़ राइटिंग द लेटर बैक टू मीना. मतलब ग्रैंडफादर जो है मीना के, उसने उस मीना को रिप्लाई देते हुए लेटर लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये जो लेटर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. And if you have any doubt related to the first letter which we have studied today, you can ask me in the live class. Okay, thank you students.